السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه۔ لائق صد احترام علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، خواتین ملت اسلامیہ، بغیر کسی تمہید کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آپ کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے۔ ایک دو نصوص نہیں بلکہ قرآن اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو ایک طرف سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہیں کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اسٹیمپ لگا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اس کو لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ کہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، قبول کرو، اپناؤ اس چیز کو جس کی دعوت تمہیں تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، کہیں اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ ساری ایک طرح کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مکاتب تعاونیہ کے علماء نظماء اور فضلاء کی رائے نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کو ہم اپنا رب مانتے ہیں تو اس رب نے ہماری اور آپ کی ساری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ انہی کے ڈگر پہ چلنا ہے، انہی سے نصیحت حاصل کرنی ہے اور ان کے عمل کو طرز زندگی بنانا ہے، تب جا کر کے گاڑی کامیاب ہو سکتی ہے، اور نہ الٹ پلٹ ادھر ادھر یمین یسار سے گاڑی کام سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتی جو ہے۔ اور میں سکھانے سے زیادہ حدیثیں چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن میرا زور یہی ہے کہ تعلیم سے بغیر عمل کے کوئی چیز ممکن ہو سکے، ایسا واللہ تاللہ باللہ کہیں نہیں ہے۔ آپ کے پاس کتب ستہ کی حدیثیں ہوں، یہ گھر بھر کر کے ڈگریاں ہوں، کسی آپ بڑے ادارے سے جڑے ہیں، کسی دینی گھرانے کے آپ چشم و چراغ ہیں، لیکن عمل نہیں ہے تو 0 پوائنٹ ہیں آپ، 0۔ اور ہم نہیں کہتے، ہمارا دین ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ شماغ، یہ داڑھی، یہ ثوب، یہ چولے، یہ زرق برق لباس، یہ سب 0 ہے اگر عمل نہیں ہے۔ نوح سے بڑا مقام
किसी का नहीं हो सकता। उलुल आज़्म मिन रुसूल में से हैं, लेकिन जब बेटे की बारी आई तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि उसका हश्र क्या हुआ। हदीसों को अपनाओ, अपनी जिंदगी का जुज़े ला यनफक बना दो, अपने घरों में राइज करो, उसके ऊपर चलो। जिंदगी का कोई शोबा और गोशा नहीं जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ना हो। मदीना वाले जो गैर थे वो कहते थे मा लिहाज़ा रसूल, इस आदमी को, इस नबी को क्या हो गया है। युअल्लिमुकुम कुल्ल शै हत्तल ख़िराअ, ये तो नबी है कि कोई और चीज है, ये तो पेशाब और पैखाने की भी तालीम दे रहा है। तो क्या समझ रहे हैं कि दीन हमारा ऐसे ही है? नहीं मेरे भाइयों, बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपनाने की जरूरत है, जिसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। नबी की तालीम को अल्लाह ताला ने कहीं कहा कि ईमान की कसौटी पे रखा है, अगर उसके ऊपर चलने वाले हो तो मोमिन हो, नहीं तो तुम्हारा कोई शुमार नहीं है। ऐसे ही जैसे बाद लोग उल्टा तवाफ करते हैं बेचारे, हम हजर असवद को, खाने काबा को बाएं करके तवाफ करते हैं, बाद लोग उल्टा तवाफ करके चले आते हैं और बड़ी खुशखबरी रहती है कि हमने गोली मार दी। मेरे भाइयों, ऐसे ही चीजें हैं। अमल जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक होगा तब जाकर के कबूल होगा। वही मस्जिदें हैं, एक एक करके आते हैं, कहीं ईमान की कसौटी पे परखा है। अगर नबी की सुन्नत के ऊपर चलने वाले हो तो मोमिन हो, कुरान कहता है। कहीं कहता है कि अगर मोहब्बत करने वाले हो अल्लाह से तो नबी की इत्तिबा करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। क्या समझ रहे हैं? ऐसे दुआ पाके आंख में लगा लेने से, रात रात भर लाठी भांजने से हम बड़े मोहब्बती बन जाएंगे? दोनों में जमीन व आसमान का फर्क है। एक मोहब्बत का दावा करने वाला है और एक शख्स वो है जो दावा करता है और उसके बाद नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है। कपड़ा म्यार नहीं है, सुरमा म्यार नहीं है, हमारा और आपका म्यार अमल है। गाड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रैक पे चलेगी तो बहरहाल कामयाब व कामना है, वरना आखिर में एक हदीस सुनाऊंगा, उससे आप अंदाजा लगाइएगा। जो है कहीं अल्लाह ताला ने हमें और आपको यह तालीम दी कि ऐ दुनिया के लोगों, ऐ सुनिए जमीन पर चलने वाले लोगों, बहुत सारा इख्तिलाफ होगा, हर आदमी टोपी लगा के उछलेगा, कोई जंग करना चाहेगा, कोई लाठी लेकर के आपसे गुफ्तगू करना चाहेगा, कोई कहेगा हम ही हक पर हैं, बाकी दुनिया सबको कठमुल्लों की है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। इसी हदीस में, लंबी है, इसी में कहा था वअद्दु अलैहा बिन नवाजिज, इख्तिलाफ होगा। सुन्नत को किसको अपनाना है? सुन्नत को अपनाना है, उसके मुतलाशी बनिए। वो जो कह देते हैं ना कि तबरानी में है, फला किताब में है, अरे किताब में कहने से कोई बात सही हो जाएगी? उसको साबित करो कि नबी से वो चीज साबित है, तब जाकर के वो हदीस होगी। वरना नए दौर के लोग हैं और तहकीक और तमयीज के बाद में 5 शर्तों में से 3 को ले लिया, रगड़ दिया, हदीस की सनद मुत्तसिल है, उनमें इनकता नहीं है, और भी जो चीजें इनकता की शक्ल में। इसी तरह से वो हदीस के जो रुआत हैं आदिल हैं, तीसरे नंबर पे जाबित है, बस कह दिया हदीस सही। मेरे भाइयों, शुजूज और इल्लत 2 बहुत बड़ी बीमारियां हैं। जब कोई हदीस इन दोनों से खाली होगी, उसका बाहरी दुनिया से टकराव नहीं होगा,
तब जाकर के हदीस सही मानी जाएगी। हम और आप ये कहते हैं कि नहीं, बस लिख दिया, बोल दिया, कह दिया किसी ने और वो आगे, ऐसे नहीं होता है। बड़े बड़े सुरमा फेल हो गए इस मैदान में। आप बैठे तो चंद हदीसों की तहकीक के लिए, तखरीज तो करें, हदीस का दिलासा तो करें और देखेंगे कि कैसा गुल खिलाया है। मजहब के नाम पे, तकलीद के नाम पे, दाढ़ी और टोपी के नाम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठी हदीसें बांधी गई, उसका जवाब कौन देगा? और दुनिया उसी के पीछे पड़ी। हदीस है, तबरानी की है, वो नहीं जानता कि इमाम तबरानी की तीनों किताबों में, अल-माजिम सलासा में पता नहीं कितनी 100 हदीसें जो है मौजू है। किसी ने लिख दिया उर्दू जुबान में, अरे फला की किताब में है। मेरे भाइयों, सबसे पहले हमारी और आपकी जो दीनी और अखलाकी जिम्मेदारी है, सही हदीसों के मुतलाशी बने, उसके बाद उसके ऊपर अमल करना शुरू करें। दूर मत जाइए, जब कोई चीज सही मिल जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, आपके अमल से, अक़वाल, अफ़ाल, अमाल और तकरीर से, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपनी जात के ऊपर उसको लागू करना है। फला क्या कर रहा है, फला शेख, फला मुल्क, फला हुक्मरां, आप क्या कर रहे हो? शेख जाकिर ने हुकूक़े वालिदैन पे जबरदस्त तकरीर की। यहां बैठे हैं, इसी दिल के ऊपर हाथ रख के भेज पूछिए अपने दिल से कि आप और हम अपने वालिदैन के साथ कितना हुस्न सलूक करने वाले हैं। दूर मत जाइए, दूर मत जाइए, अपने आप से सवाल कीजिए। ये इत्तिबाए सुन्नत कोई छोटा सा मौजू नहीं है, 50 लोगों को लगा दे तब भी ना का, पूरी नबी सल्लल्लाहु की पूरी जिंदगी से जुड़ी चीज है। और जब उसके ऊपर चलेंगे तभी जाकर के गाड़ी आपकी और हमारी आगे बढ़ सकेगी जो है। मेरे भाइयों, ये तो 2-4 बातें हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों के बीच मबऊस किए गए, जिन्होंने नबी की जुबान से ये हदीस और खबर और असर अपने कानों से सुना, 2-3 मिसाल मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। पहली हदीस है अबू दाऊद की और सही रवायत है। हदीस के रावी है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह। कहते हैं कि जुमा का दिन था, कामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीबन अलल मिंबर, और बाद रवायत इस्तवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीबन अलल मिंबर फकाल इजलिसू। अल्लाह के नबी खुतबा देने के लिए खड़े हुए। किसके लिए? खुतबा देने के लिए खड़े हुए। आपने कहा कि अय लोगों बैठ जाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद का नाम आपने सुना है। वो दरवाजे, मस्जिद के दरवाजे के दरमियान थे। फजलसा अला बाबिल मस्जिद, इस मऊ जो सुना इजलिसों की, बैठ जाओ। लोग आगे पीछे थे, वो मस्जिद के दरवाजे, उसी मस्जिद के दरवाजे पे बैठ गए। फरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालिया अब्दुल्लाह, अल्लाह के नबी ने देखा, कहा वहां मत बैठो, यहां आगे आ जाओ जो है। तो ये सहाबा थे जिन्होंने अपनी जान को हथेलियों में रख करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पीछे लगे रहे जो है। और हमारे और आपके लोग कहो हदीस है तो ऐसा झिड़कते, अरे हदीस रखो, बड़े मौलवी बन गए हो। ये हमारे और आपके दौर में बड़ी आसानी से, अल्लाह माफ फरमाए, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाजिर हो जाए। बहुत सारे लोगों को इसी 40-42 साल की उम्र में जो रगड़ते थे, कीड़े निकालते थे, या तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया वालों के लिए बाइस इबरत बना दिया, और या तो फिर मुस्तशरिकों के अक़वाल को लेकर के वो गैर मुस्लिमों की राह गलापने लगे, और या तो फिर जो है अल्लाह ताला ने बाज लोगों को हिदायत भी दे दिया उसमें से। तो बहरहाल जो हदीस है, साबित है, उसको अपनाइए, उसके ऊपर अमल कीजिए।